I'll start once again. A very good afternoon to one and all. Respected Principal, Vice Principal Dr. Sneha Devskar, today's guest of honor Dr. Neeta Chakravarti, Head Department of English, and Dr. Mithilesh Sharma, Head Department of Hindi, teacher colleagues from various departments, dear students, and my colleagues in the library. Let me tell you something about storytelling. Storytelling is the oldest form of teaching. It gives children the answers to the biggest questions of creation, life, and the afterlife. Children, rather, Children, rather, we all have an innate love for stories. Stories create magic and take one to a different world. Stories teach us about life, about ourselves, and about others. Storytelling is a unique way for students to develop an understanding, respect, and appreciation for other cultures and can promote a positive attitude to people from different lands, races, and religions. Thus, it enables listeners to empathize with unfamiliar people, places, and situations. Stories define us, shape us, control us, and make us. Not every human culture in the world is literate, but every single culture tells stories. We often give stories to our students to read, but not very often tell them a story, especially for college students. Today, the 22nd of June 2021, is the fourth day of our Reading Week celebration. This Reading Week celebration has given us an opportunity to organize storytelling sessions for our college students in English, Hindi, and Marathi. Today we have organized storytelling event in English and Hindi, and our very own favorite teachers from English and Hindi department are going to tell us fascinating and mesmerizing stories. Before I call upon Dr. Neeta Chakravarti, Head of Department of English, to tell us stories, I would like to give a brief introduction about her. I know all of you know her very well, but still I would like to give a brief introduction of Dr. Neeta Chakravarti. Dr. Neeta Chakravarti is a very soft-spoken, down-to-earth person. As a librarian, I know her for last 20 years. I would like to tell about her qualifications. She has completed MA, MAd, and is SET as well as NET qualified. She has obtained PhD from University of Mumbai as well as a recognized PhD guide at University of Mumbai. She has authored textbooks for FI BCom, FI BAF, FI BA, TYBMS on communication skills, business communications, corporate communication respectively. She has presented and published research papers in national and international journals and conference proceedings. She has also completed a minor research project on J.K. Rowling's works from University of Mumbai. Okay, now about her personality, I would like to share something very personal. Dr. Neeta Chakravarti is not only a favorite teacher amongst her students, but also famous for her very soft-spoken and down-to-earth personality amongst teacher fraternity. As a librarian, I know her for last 20 years. She is a voracious reader and has always motivated her colleagues and students to read books other than the syllabus. She is also very active in various library events and programs and also contributed towards upgrading the library collections as well as the services. I take this opportunity to thank her for sparing her valuable time for us and willingly accepting our invitation to tell us some of her favorite stories. I now request Dr. Neeta Chakravarti ma'am to please take over. Thank you. Thank you, Madam Subhangi Vedat, Madam.
That was quite an elaborate introduction, actually. And it was really a pleasure to come over here and share a story with our students. I thought it would be a lot of students, and truly, there are a number of students, which I was a little doubtful about, but then they have come in good numbers. And it's a Yes. pleasure to share a story with them. Basically, the story is definitely not mine. I have taken it from some other writer. In fact, I'm retelling the story, which is written by R.K. Narayan. Basically, when we talk about stories, as Vedak Madam told us, stories are something that are very, very personal. They make us so very happy when we are in the world of stories. It is as if we are, we have escaped from all tensions and worries of this world, and we are in a wonderful world of our own making. That place or that space is so personal and so likable that all of us would always like to be in that space. When we are very small, it is our grandparents who take us on that journey. And we have grandma and grandpa telling us nice stories. As we grow older, it is, you know, we ourselves learn to weave stories. Why we weave stories? Sometimes to escape situations. We want to uh, plan to or say the story in such a way that it is plausible, but it may not really be the truth. So stories keep on changing their texture, changing their colors, and touching our lives. And as we keep growing older and older, we begin to love these stories. They are our saviors. Whether you go to the world of advertisement, whether you go to any world, you always are busy in the corporate world. Actually, you always need stories in order to justify whatever you're doing. Otherwise, without stories, there would be no way in which you would be able to communicate. So, the basis for communication itself is storytelling. All right, now instead of wasting a lot of your time, let me take you to a very basic Indian writer, R.K. Narayan's works. Now, you are already familiar with some of the short stories of R.K. Narayan. But let us take this one. I've specially selected this thinking that it is an Indian writer and you will be able to relate better with what he says because they are so very true for all of us and we understand it immediately. So let me begin. The story is entitled All Avoidable Talk. The title itself gives us an inkling as to what the story is all about. It is about avoidable talk. I don't know how many times we talk or say things and then we realize it was all avoidable. So let us see what R.K. Narayan has to say about avoidable talk. He was told to avoid all quarrels that day. The stars were out to trouble him, and even the mildest of his remarks, likely to offend and lead to a quarrel, the planets were set against him, and this terrified him beyond description. Many things that were prophesied for him lately were coming true. He sat in a corner of a big jeweler's shop and added up numbers all day. He left it at the end of the day and on his way home dropped in for a moment to exchange tidbits with a friend near his house who affected great knowledge of the stars. Occasionally, the friend gave out free prophecies. Many things that he said came true. You will have bother about money matters for a fortnight. Even your legitimate dues will not reach your hand in time. Too true. The usual rent he received from his village by money order went all over India before coming to him because of a slight error in
his address. And then his friend told him, Saturn will cause minor annoyances in the shape of minor ailments at home. And the following week, everyone from his old mother down to the 4-month-old went down with cold and fever. He himself felt like taking to bed, but his jeweler chief would not let him go. And now his friend had told him on the previous evening, now I see your worst period is coming to an end, but avoid all avoidable talk tomorrow, the whole of Monday. There is always the danger of your irritating others and finding others irritating. The moment he opened his eyes and lay in bed, he told himself, must not talk to anyone today. Who can see where a word will lead? He pinched the cheek of the youngest, patted the back of another, found the boy of 7 unwilling to start for school, was about to shout at him, but decided not to interfere. A happy godsend for the boy. His wife appealed, why do you allow him to have his own way? He merely shook his head and went off to the bathroom. His daughter had locked herself in. That meant she would not come out for an hour. She had once again broken the specific order not to go into bed at office time. He tapped the door twice or thrice, glared at it, and went away and put himself under the tap in the front garden. All through his dinner, he sat with his bowed head, maintaining a determined silence, answering his wife's questions with a curt yes or no. While starting for his office, it was his usual practice to stand in the passage and ask for a little betel nut and leaves with a cynical remark that they might have consideration for a man who had to catch an early tram. Today he stood on the threshold, waiting to see if anyone would serve him, and stepped out into the street with the reflection, if they have not the sense to do a piece of regular duty without reminder, I won't chew betel. That is all. The tram was crowded as usual. Somebody stood on his toe. He boarded patiently. The tram conductor pushed him aside and uttered rude remarks for standing in the way. He kept quiet. The inspector who uh, entered the tram, he for checking would not budge at the magic word pass, but insisted on seeing it, and fretted and swore while Sastri fumbled with his buttons and inner pocket. Sastri never uttered a word and bore it like a martyr. At the office, he was only 2 minutes late, but his employer, already seated on his cushion, glared at him and behaved as if he had been 2 hours late. Shastri stood before him, dumb, listening patiently to all the charges. You stand there like a statue, saying nothing. Must be very convenient, I suppose, said his employer, looking him up. What has come over you? Nearly escaped Shastri's lips, but he checked himself as he came to. What has... Eh? Demanded his employer. What is the time now, sir? He asked. You ask me the time? Go to your seat, Shastri, before I am very angry with you. Shastri slunk back to his place. The routine of office life started. The attendant wiped and rearranged the showcases. Customers started coming in to buy and sell gold tricklets and jewels. The small fan whirred and gyrated,
wafting cool air on his chief's face. The other partner came in at about midday and took his seat. The younger son of the master came in demanding some cash for some extravagance and went away. And Sastri sat in his corner surrounded by heavy registers. Looking at the figures in the pages, he reflected. Nearly 2 o'clock. Another 8 hours of this place, and the day will be over. A customer stopped before him, held up a trinket, and asked, "Look here, can this diamond be taken out and reset in platinum?" Shastri looked dully at the trinket and said, "You must ask over there." "It's all right. I know that," replied the customer haughtily. "Answer my question first." Shastri shook his head. Evidently you know nothing about these matters." "I know nothing," Shastri said. "Then get out of a shop like this," answered the other, and moved on and sat before the proprietor. The proprietor presently called, "Shastri, come here." "Yes, sir," Shastri said without lifting up his head. There were 3 more lines to be added to complete the page. If he was interrupted, he would have to start from the top of the gigantic folio all over again. So there was some delay before he could respond to his master's call. Before that, his master lost his temper and shouted, "Drop the pen and come here when I call, will you?" There was still 1 more line to go in. If this link was missed, there was the ghastly prospect of having to spend the whole evening in the company of figures. The master's call became insistent. Shastri looked up for a moment from his ledger. He caught a glimpse of the other's face, a red patch flushed with anger. He compressed his lips and resolved more than ever not to rise before completing the totaling. He sat as if deaf, calmly going through his work. By the time he stood before his master, the latter had gripped in his hand a leaden paperweight. Perhaps he wanted to fling it at me, Shastri reflected, and was overwhelmed for a moment with resentment. The troublesome customer sat there comfortably and watched the scene with a self-satisfied grin. Looking at it, Shastri felt it was an added indignity. He pays me 50 rupees, not for nothing. I slaved for him. But what right has he to insult me? He felt desperate. His brow puckered. He asked, "Look at the paperweight in his master's, looking at the paperweight in his master's hand. What's that for?" "Idiot! What has come over you? Mind your own business," said his boss. "Why can't you come up when you're called?" Shastri had meantime recovered his temper, realizing how near an explosion he had been. "I was totaling up, sir," he said, disciplining himself resolutely. "Learn to come up when called. Why were you rude to this gentleman?" "I wasn't," replied Shastri briefly. "Do you think I am lying?" shouted the customer and scowled. Shastri gulped down his reply, just remembering in time the injunction, "Avoid all avoidable talk," though he felt like hitting his adversary now. His boss looked up at him and said, "Shastri, I must warn you for the last time. You must be courteous to all my customers. Otherwise, you may get out of this shop." "I merely said I didn't know about platinum." "I don't want all that. Everyone in this shop must be able to answer about any department. Otherwise, I don't want him in my service. Do you understand?" Shastri turned back to go. The customer added, "I only wanted to know if this could be set in platinum. Can't you answer that simple question?" "Oh, is that all? Even a child should be able to answer that," echoed his master. "Shastri, come here." Shastri again stood before him. "What do you know of platinum setting?" "I don't know anything, sir." "You say that to me? All right. Go back to your seat. I will deal with you presently. Get out of my sight now."
Sastri sighed and turned back. While he was going back to his seat, he overheard the customer saying, "These fellows have become very arrogant nowadays." Sastri, sitting in his corner, tried to drown his thoughts and figures. He partly succeeded. One part of his mind kept smarting. Some fool comes in, and because of him, I must stand every insult. I have served here for 20 years. The customer had finished his work and was going past him, throwing at him a triumphant and contemptuous look. Sastri quickly turned away and gazed at the folio. Is this man born to torment me? I don't know who he is. A blue beam of sunlight strayed in through a colored window pane and moved up to the ceiling. That meant it was nearly dusk. His boss got up and passed out. As the motor car started down below, the others in the office also rose to go and filed past the door, all but Sastri and the watchman. The interruption from his boss had cut in so badly that numbers jumped at each other's throats and knotted themselves into hopeless tangles, which meant he would have to go over immense areas of the ledgers. He switched on the light and worked till 9. Stretching his cramped fingers, he descended the staircase and was on the road. I have been called names. I have been insulted by strangers and by my officer, by before everyone. Platinum, platinum. I have served for 20 years for less than 50 rupees a month. He wondered why he had become so degenerate as not to be able to earn this anywhere else. Tonight I will not dine without extracting an apology from my boss. Otherwise, I shall throw off this work. I don't care what happens. He had in a flash a vision of his wife and children starving. It seemed insignificant to him now. I will somehow manage, open a small shop with a loan or something and manage somehow. I don't care. Nothing seemed to him important now, except redeeming his dignity as an ordinary human being without any reference to his position as an accountant or the head of a family. He remembered the lead paperweight. That hurt his mind more than anything else. He walked down the tramp line, sunk in thought. A tramp for Royapeta stopped near him. He checked his impulse to climb into it and go home. He let it go. He sought out the bus for Kilpock and got into it. It was nearly 10 when he reached the gates of his master's bungalow, Amber Gardens. The watchman said, "So late, sir?" "Yes, I have to see the master," he replied. "Is he awake?" "Yes, he has just had his dinner and is sitting in the front room." Halfway up, Sastri felt uneasy as he recollected the advice of his friend, avoid all avoidable talk. But he could not turn back now. Fate seemed to be holding him by the scruff and propelling him forward. He stood in the hall. His boss had spread himself on a sofa with a sheet of newspaper before him. Shastri stood hesitating. Avoid all, avoidable. His friend's words drumming throughout themselves throughout his brain. Nothing more avoidable than this, he told himself. He wished he could turn back and go away. Better to tackle him in the office. It is better to talk to a boss in his to talk to a boss in his home is difficult. Before he could make up his mind about it, his boss turned over a page, observed him standing meekly. He stared at him for a while and then said, "Shastri, I see now that you have enough sense to feel sorry for your own conduct. I was thinking of you.
If I find you again talking back to me, I'll dismiss you on the spot. Remember. And again, I find you're rude to others too. That man comes asking about platinum setting. Yes, sir, platinum setting, echoed Shastri. That was a madman. You saw me with a paperweight in my hand while he sat before me. Yes, sir, I noticed it. But it is none of your concern, whether mad or sane, whoever it may be. It is your business to answer politely, whether it be about platinum, silver, clay, or rag. Everyone in my office should know about every other department. I would have dismissed you for your speech and conduct today, but you have saved yourself now. It is my principle to forgive a fellow who sincerely repents. It is late. You may go now. I am very grateful to you. Good night, sir, Shastri said, putting extreme politeness in his tone. While going home, he did not feel the tediousness of the way or the hour, for he was quietly gloating over the fact that he had triumphed over his stars that day. Thank you. This was the short story, All Avoidable Talk by R.K. Narayan. वेरी नाइस नीता. Thank you, Sneha. लग रहा था खत्म ही नहीं हो. Yes, very nice. You narrated also, you said also so nicely. I was feeling as if the whole picture is going on. Yes, And yes. when you said Shastri, Shastri sir from chemistry department came in front of me. True. It's very nice. And R.K. Lakshman's stories are really very R.K. interesting. Narayan. R.K. Narayan, sorry. Yeah, R.K. Narayan also. You gave justice to it. Yeah. Students, do you have to say anything? Any student wish to say something or wish to ask ma'am anything? Otherwise, we will go to our next session. Okay, thank you, Vedak ma'am, for Yeah. having given me this opportunity. It's to our read pleasure, ma'am, to hear story. you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you Thank you so very much. much. Okay, our next speaker now, Dr. Mithilesh Sharma. यस मैडम बोलिए. हाँ, नमस्कार डॉक्टर मिथिलेश शर्मा मैडम. मैं थोड़ा आपका परिचय कराना चाहती हूँ सभी से. अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर मिथिलेश शर्मा को हम सभी जानते हैं. फिर भी मैं एक प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर शर्मा का औपचारिक रूप से परिचय कराना चाहती हूँ. डॉक्टर मिथिलेश शर्मा शोध निर्देशक के रूप में भी रामनिरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय में काम कर रहे हैं. उनकी कुछ प्रकाशनें भारतेंदु युगिन काव्य प्रवृत्तियाँ और दत्त द्विजेंद्र के साहित्य का अनुशीलन, भाषा के विविध रूप और संचार माध्यम, पुस्तकी सहयोगी लेखिका संकलन एवं संपादन उन्होंने किया है. रामविलास शर्मा की साहित्य साधना, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकों में शोध पत्र, आलेख तथा साक्षात्कार प्रकाशित हुए हैं. यूजीसी द्वारा अनुदानित लघु शोध जिनके नाम है भूमंडलीकरण और हिंदी और मन्नू भंडारी की कहानियों में नारी वैचारिक असमंजस. उनके विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रपत्र प्रस्तुति उन्होंने किया है. और मैं डॉक्टर मिथिलेश शर्मा को करीबन 20 साल से जानती हूँ. उनका ग्रंथालय और पुस्तकालय की ओर भी बहुत लगाव है. मैंने देखा है कि उनके वजह से उन्हें जो कलेक्शन डेवलप किया है ग्रंथालय में,
वो बड़ा ही स्पेशल है, जो उनके विद्यार्थियों को, और हिंदी का एक अलग सेक्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रेयर कलेक्शन है अपने अपने यहाँ। तो लाइब्रेरी का कलेक्शन डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और वो खुद भी खुद पढ़ते तो है बहुत, लेकिन उनके विद्यार्थी भी बहुत आते हैं, और उनकी पढ़ने की इच्छा भी बहुत उनके वजह से ही है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर मिथिलेश शर्मा की, कि उन्होंने इतने अपने बिजी शेड्यूल में अपना लेक्चर्स वगैरह करके अपना मूल्यवान टाइम हमको दिया है, और बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मैडम। और अभी आपकी तरफ, आप हमें आपका जो पढ़े हुए लेख है, उपन्यास है, कथा है, तो आप सुनाइए, हम बहुत ईगर है सुनने के लिए। धन्यवाद मैडम। नमस्कार स्नेहा मैडम, नीता मैडम और सभी मेरे उपस्थित मित्र। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगी। मैं शेयर कर सकती हूँ ना मैडम? मुझे जरा शेयर का वो दे दीजिए। हाँ हाँ, यस मैडम। आज की एक चर्चित लेखिका हैं उषा प्रियमवदा। आधुनिक हिंदी साहित्य में उनका बड़ा नाम है। उन्हीं की कहानी पर मैं बात करूंगी, और यह कहानी वृद्ध विमर्श से संबंध रखती है, जो आज के समय में शायद बहुत ही चल रहा है। पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधी जो स्वरूप है, जीवन की जो व्यवस्था है, समाज का जो रूप बदल रहा है जिस तरह, उसी को उषा प्रियमवदा जी ने अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी कहानियों में आधुनिक परिवारों को के बदलता जो मानवीय संबंध हैं, उन पर यह कहानी बहुत ही एकदम सटीक बैठती है। एक व्यक्ति जीवन भर कमाता रहता है और तब तक वो अपने परिवार के पालन पोषण करता रहता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है और पूरा जीवन वो यह सोचकर काट देता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपने परिवार के साथ रहूंगा खुशी खुशी। और जब वो परिवार के साथ आता है 25 साल के बाद अपने पूरे परिवार के साथ, तो परिवार में शायद लोगों को, यानी उन्हीं के परिवार में उन्हीं के लोगों को शायद उनकी ज़रूरत नहीं रहती, और सभी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि उनके आने से घर में जगह कम हो गई है, या घर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। और ऐसे में लेखिका ने एक अच्छा मोड़ दिया कि जो इसके मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, उन्हें नौकरी का ऑफर पहले भी था उनकी ईमानदारी को देखते हुए, लेकिन वो घर के मोह से नौकरी का ऑफर ठुकरा चुके थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर में ज़रूरत नहीं है और पत्नी को पूछा, क्या आप मेरे साथ चलोगी, तो पत्नी भी घर गृहस्थी में इतनी रमी हुई थी कि उसने भी मना कर दिया। तब उन्हें बहुत दुख हुआ और वो वापस चले गए। और जब चले गए तो जैसे उनकी चारपाई भी पत्नी ने अपने कमरे से बेटे से कहा, इसे निकाल कर रख दो। कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि आज मानवीय मूल्य जिस तरह हमारे समाज में से खो रहे हैं, उन्हीं मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने में सहयोग करती है यह कहानी, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ने वाली हूँ। कहानी का नाम शीर्षक है वापसी, और उषा प्रियमवदा की कहानी है। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा, जो उनका नौकर था। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता
टूट रहा हो। गणेशी कहता है, कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। गजाधर बाबू कहते हैं, कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे की छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रह रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और उन्हें स्नेह की आकांक्षा भी थी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी के स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाई रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह हारे थके बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी भी यह बात याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहों की आवाज आ रही थी, हा हा हा। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वे बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और उनकी बेटी बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू, बेटे की बहू, अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था या और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता जा रहा था। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिक पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी,
और प्याले में उनके छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी मां की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पीकर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है। बसंती बोली, लाइए चीनी और डाल दूं। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर और झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के ग्लास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी की शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इस खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र कट बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर भी कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया अपनी बेटी को, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहां जा घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर के मर्तबान दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयों दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बैग की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डालकर पड़ी जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई।
गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वे घर का रवैया देख चुके थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। पत्नी ने कहा, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब है, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाए कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें, गजाधर बाबू ने पत्नी से कहा, तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। और पत्नी, हाँ बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही था क्या उनकी पत्नी? यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को? चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, और क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठा बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। आंख भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात को भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक न निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तो नक्कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया? अरे, पत्नी ने कहा, आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम मां को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी तो नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन ही में मन निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ।
लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बात नहीं करेगी, बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने सूचना दी, अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था, गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को तो अब भी वे छोटा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। और बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फुअड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही सब अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतार दिया और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी में कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य जाते, पर आते जाते थक उठते। गजाधर बाबू को कहना पड़ा। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खट खट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगार उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें कोई खोई हुई प्रतिनिधि सा लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी निधि खो गई है, खजाना खो गया है। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे हुए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटखट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यही पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। ननेद रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन का लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वे पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों की छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वह उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत होने लगी थी
जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी, उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन से बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए, आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इसी बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहते क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा में वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली और आंचल से पहुंचती हुई पास आकर खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट कर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। इस तरह यह कहानी का यहाँ समाप्त होती है। कहानी का अंत होता है जो दुखद है। आप सब ने मुझे अवसर दिया। मैं पूरे अपने पुस्तकालय के विभाग को, मिश्रा जी, वेदक मैडम और सभी जितने भी कर्मचारी हैं, आपने यह अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश मैडम, बहुत ही अच्छा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ना एक वो शॉर्ट फिल्म देख रही हूँ। अभी बहुत से शॉर्ट फिल्म्स आते हैं ना, तो आप जिस तरह से बोल रही थी वो पूरा पिक्चर मेरे सामने आ रहा था। एकदम इमोशनल स्टोरीज थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।
कुणाला काही बोलायचं आहे? स्नेहा, कोणते टीचर्स ना? मिथिलेश, बहुत ही सुंदर आपने और नीता ने, दोनों ने बहुत सुंदर कथन किया। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक वस्तुपाठ रखा है आपने कि कैसे कथन किया जाता है। मैंने कल ही बच्चों को बोला था कि कहानी का जो कथन रहता है, आप जैसे कहते हैं, ये भी आजकल एक बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि आजकल कोई खुद बुक लेके पढ़ना नहीं चाहता। तो बहुत सारे ऐसे सब चैनल्स हैं और बहुत सारी आज उपलब्धि है कि लोग ऐसे अपनी रिकॉर्डिंग्स करके सुनाए, और ऐसे सुनने वाले भी बहुत है आजकल। तो ये एक अच्छा व्यवसाय के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे ऐसे लगता है कि आपने ही, टीचर्स ने आपको इतने अच्छे से दो कहानियां सुनाई। वो अपने आप में एक दिशा देने वाली तो है ही, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये देख के आप भी प्रेरित हो जाए। अच्छे तरह से हम कहानी अगर पढ़ते हैं तो वो एक तो जैसे शुभांगी मैडम ने कहा कि आंखों के सामने जैसे कुछ चित्र चल रहा है, ऐसे लग रहा था। तो ये एक सामर्थ्य है अपनी आवाज की, उसके भाव समझ के अगर वो हम कहानी बताते हैं तो कितनी उससे आनंद मिलते हैं वो भी हम सुन सकते हैं। और मुझे सचमुच ऐसे लगा कि बचपन में जैसे कोई कहानी सुनाता है, ऐसे मैं वो उम्र में चली गई और सुनती रही। भले कहानी बड़ी एज की थी, लेकिन फिर भी वो सुनने में जो एक मजा आता है वो दोनों ने दिया, इसलिए दोनों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैडम। Yes, good afternoon, respected teachers. बोलो आलोक। यस। Yes, मैम। मैम, आपकी स्टोरी इतनी अच्छी थी, जैसे कि रिस्पेक्टेड लाइब्रेरियन मैम ने कहा कि सामने सबके इमेज बन रहा था एकदम। रियली मैम, ये स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और मैम, इस चीज को मैंने बहुत ही उससे मतलब बहुत ही अपने लगाव से देखा है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसी ये चीजें मैंने रियल में होते हुए देखी हैं। तो आप मैंने रियल चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत करके दिखाया कि कैसे जीवन में ये वास्तविकता है, जीवन की हर घर की यही समस्या है। तो हम कैसे इस चीजों को हम देख सकते हैं, या अगर कहीं आज हमारे हमारे डेट के लिए ये है तो कल हमारे लिए भी होगा। तो कैसे हम इस चीजों को दूर कर सकते हैं कि हम अपने मतलब हम सुख शांति से रहें, इस तरह ना हो कि हम जैसे कि गजाधर बाबू की तरह कि घर ही छोड़ना पड़े। कि आखिर क्या है कि हम इस चीजों को दूर कर सकें। यस मैम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आलोक। यस मैम। Bangi madam, हाँ। madam, I would like to congratulate you actually for inviting such excellent personalities from our college. Yes, We always thank you so meet much. them as a teacher, but we never come to know how they express themselves in their own subject, and that we could see very well. And I really enjoyed both the stories. Thank you so much, Mithilesh madam, and thank you so much, Nita madam, for both the stories. We really liked it, and when the subject expert, the language expert, when he or she reads that time, they actually emphasizes on the real meaning of that subject and that particular word, and overall impression comes from that particular story is excellent, and I really like. Thank you so much. Thank you, Chaya ma'am. थैंक यू छाया मैडम। Okay. Now I request our staff, Ravi Baikar, to propose vote of thanks. Ravi? हॅलो, नमस्ते. आजच्या या कार्यक्रमाचा 4था दिवस
आणि या 4थ्या दिवशी या कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट झालेले आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, उपप्राचार्य, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी आणि आजच्या स्टोरी कथा अभिवाचनासाठी प्रमुख पाहुणे लाभलेले इंग्लिश विभागाचे प्रमुख डॉक्टर नीता चक्रवर्ती मॅडम आणि हिंदी विभागाच्या प्रमुख डॉक्टर विश्लेष मॅडम सर्वांना धन्यवाद देतो. खरोखरच आजच्या या तिन्ही भाषांमधून आजचं मला वाटतं आपलं कथन झालेलं आहे वाद स्टोरीचं. त्यातून सर्वप्रथम इंग्लिशमध्ये नीता चक्रवर्ती मॅडमनी R.K. नारायण इंडियन रायटर यांच्याबाबत काही स्टोरी सांगितली. जास्त इंग्लिशच्या बाबतीत नाही समजलं तरी पण त्यातून एक चांगल्या पद्धतीचं बोध घेण्यासाठी स्टोरी सांगितली. बऱ्याचशा स्टोरी पुस्तकं मॅडम ग्रंथालयात आल्याच्या नंतर आम्ही घेतो आणि त्या पाहतो. त्यामध्ये R.K. नारायणची अशी पुस्तकं आहेत, टायगर और मालगुडी, डॉक्टर मॅन, द बॅचलर ऑफ आर्ट, अशी अनेक पुस्तकं आहेत. तसेच ह्या सगळ्या स्टोरी जर विद्यार्थ्यांनी अशा वाचल्या पुस्तकं घेऊन तर त्याच्यातून त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडेल हे खास करून इथे या ठिकाणी नमूद करूचं वाटतं. आणि असेच पुढे कार्यक्रम आयोजित झाले तर प्रत्यक्षात देखील स्वातंत्र्यानंतर आपण आपल्या स्टोरी रायटिंग घेऊ. आणि दुसऱ्या आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख लाभलेल्या हिंदी विभागाच्या मॅडम विश्लेष मॅडम यांनी तर खरोखर हिंदी विभागाच्या संपूर्ण कलेक्शन जास्त प्रमाणात झालेलं. त्यातून त्यांनी आजची एक कथा स्टोरी पूर्णपणे हिंदीमध्ये आपल्यासमोर सांगितली. खरं प्रत्यक्षात एखाद्या कुटुंबात किंवा कुठेतरी अशा घटना घडत असतात आणि त्याच्यातून बोध घेण्यासारखं आहे. वापसी म्हणून त्यांनी गजेंद्र यांच्या वरती पूर्णपणे माहिती सांगितली आहे आणि ते आपल्या लक्षात आले. खरोखर आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सर्वांनी वेळ देऊन आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला सहभागी झाल्याबद्दल आम्ही हिंदुवाला कॉलेजच्या ग्रंथालय आणि सर्वांना धन्यवाद. धन्यवाद रवी. मी आता उद्याच्या कार्यक्रमाबद्दल थोडक्यात सांगते. उद्या 23 जून उद्या आपण बाहेरून एक वक्ते बोलवले, स्टोरी टेलर आहेत त्या. त्यांचं नाव आहे मिस लोपामुद्रा मोहंटी. त्यांचा उद्या इंग्रजीतून अभिवाचनाचा कार्यक्रम होणार आहे. तर सर्वांना परत पुन्हा एकदा विनंती की अशाच चांगल्या संख्येने तुम्ही उपस्थित राहा आणि आम्हा सर्वांना प्रेरणा देत राहा. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. मैडम वेदक हाँ. मैडम लिंक में 19 आ रहा है. 19 डेट. यस. ओके, वो डीपी से पूछना पड़ेगा फिर मुझे. तो उसको भरना है कि नहीं? नहीं, भर दीजिए. वो डेट का शायद वो. स्नेहा मैडम आपका माइक बंद है. स्नेहा मैडम माइक बंद है. Actually, now new link is given. न्यू लिंक इज ऑलरेडी हाँ, गिवन. हाँ. थोड़ा ऊपर जाएगी तो मिलेगा, देखती हूँ मैं. अच्छा. New link is given and all dates are available on that. 1 minute. So we can click on the respective date. बिफोर शुभांगी कुड एंड द मीटिंग, वो कर लो सब लोग. लिंक भर दूं एक बार? हाँ, भर दी. क्योंकि मैं गई, मैंने वो फिलअप की लेकिन उसमें 19 मैडम. नहीं, ये दूसरी है. दूसरी बाद में दोनों दिए हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए अलग से वापस दिए हैं. 1:20 पे है. यस. टीचर्स की मैं शुरू से टीचर अटेंडेंस साथ में देख. एक मिनट. नीता, मुझे तो स्टूडेंट्स वाली दिखाई दे रही है. नहीं है. 1:20 वाला देख. टीचर अटेंडेंस लिखा है वहाँ पे. ओके. Both are given in the same message. Earlier we have teachers attendance and immediately after that student attendance. टीचर अटेंडेंस, यस. मिल गया. हाँ, मिला, भी ओपन हो रहा है. बस 1 मिनिट पर. शुभांगी मॅडम रेकॉर्डिंग बंद केलं तरी चालेल. हाँ. हाँ. धन्यवाद मैडम. हाँ. हो गया.